Good morning, students. Today we will discuss the computation of GST, and uh, we will discuss the various goods and services under the negative list and the exempt list. Already, the negative list we have discussed, that the services provided by an employee to employer, then the services by court or tribunal. These points we have discussed in a previous lecture. Now we will discuss today the exempt list. Now the exempt list means, students, these are the commodities and the goods under which the GST is not applicable. So for them the GST is not applicable. So we will discuss one by one. The first one is see, if any types of live animals, okay, live mules, animals, live swine, they are not subject to GST. So if anyone is supplying sheep, poultry items, live animals to the other person, that is to the recipient, then on which GST is not applicable. Even the meat of swine, fresh, chilled or frozen, any type of meat also not applicable, means on which the GST is not applicable. Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, that also not subject to GST. So any type of live animals or poultry or their meat is not subject to GST. See, the pig, their meats, live fish, okay, fresh or chilled, not processed, no, not branded. So live fish, if anyone is supplying to the others, maybe in lakhs rupees or in crore rupees, not subject to GST. Okay, then aquatic invertebrates other than crustaceans, so live, fresh or chilled. So any type of aquatic animals also not subject to GST. Even birds, egg, natural honey, human hair, all goods, that is bones and horn coast, unworked, defeated, that is also not subject to GST. Potatoes, tomatoes, live trees, onion, shallots, cabbage, lettuce, cucumbers, these vegetables not subject to GST. Even fruits also, dates, fig, grapes, apples, apricots. If you are supplying these fruits to the to other dealer, to the customer, not subject to GST. Unprocessed green leaves of tea. So processed leaves of tea are subject to GST 5%, but unprocessed green leaves of tea not subject to GST. Then some spices, seeds of anise, Badian fennel, they are not subject to GST. Fresh ginger, but if any branded masala spices are there, that is subject to GST 5%. But if loose spices, if you are selling, not subject to GST. Wheat, rye, barley, rice, okay, not subject to any types of cereals, okay, not liable for GST. Then all goods of seed quality, any types of seeds, maybe a um, sunflower seeds or any type of seeds not liable for GST. But if you're extracting the oil from such sunflower, then it is subject to GST. See, plants, locust, cereal, straw, sweets, lac, betel leaves, jaggery, not subject to GST. Even bread, papad, prasadam, not liable for GST. Non-alcoholic toddy, tender coconut, salt, electrical energy, okay, all goods of organic manure, municipal waste, plastic bangles, firewood, condoms, not liable for GST. Wood, charcoal, postal items like envelope, checks, printed books, newspapers, silkworm, raw silk, silk waste, wool, that is completely unprocessed, not subject to GST. खादी यान, jute fibers, coconut रहेगा तो glass bangles not subject to GST. चरखा, handloom items, thereafter hearing aids, okay, जिसको सुनने में बहुत तकलीफ है उनके लिए हेयरिंग एड्स आते हैं, तो वो
be subject not subject to GST. स्लेट पेंसिल स्लेट्स जैसे हम लोग पाटी पेंसिल बोलते हैं ना, तो वो भी जीएसटी के अंडर, कोई भी टाइप की जो पूजा सामग्री है तो वो भी जीएसटी के अंडर नहीं आती. Supply of lottery by any person other than state government, services by an entity registered under section 12 of income tax, that is charitable activity जो परफॉर्म करते हैं, कुछ एनजीओज रहते हैं, उनके सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. Then services provided on behalf of central government, state government, okay, not subject to GST. तो ये भी आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो. They are normally provided by the government officers in the public interest. A small charges may be charged by the such government offices for the clients or for the public, but they are not subject to GST. Services provided by central government, state government, union territory, or local authority to a business entity with an aggregate turnover of up to rupees 20 lakhs. Okay, so for them also, if any services provided, they are not applicable for GST. तो ये सब आप read कर सकते हो. Services provided by way of pure labor contracts for construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, they are not also subject to GST, but under the housing for all mission और प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंडर अगर आप प्योर लेबर सप्लायर हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट की जाती है तो वो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता. सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस वेयर डेली टैरिफ रेट इज लेस देन 1000 rupees, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल. Transport of passengers with or without accompanied belonging by air embarking from terminating in airport located in the state of अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स है सो थ्रू एयर, दैट इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर जीएसटी. नॉर्मली हम लोग अगर एयर ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आता है, यहाँ नहीं है. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रेलवेज इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच, तो जनरल क्लास के लिए जीएसटी नहीं है. मेट्रो, मोनोरेल और ट्रांसवे, इनलैंड वाटरवेज, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है. सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड नॉट लाइबल फॉर जीएसटी एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और कुरियर एजेंसी. अगर आप दोनों में से किसी अंडर हो, आपका एक स्पेशल बिजनेस है, पैकर्स एंड मूवर्स रहते कि एक जगह से दूसरे जगह पे आपको शिफ्ट होने का है, तो पैकर्स एंड मूवर्स आपको जो सर्विस देते हैं तो वो जीएसटी के अंडर आता है. इवन कुरियर एजेंसी भी वही लॉजिस्टिक का काम करती है, तो वो भी जीएसटी के अंडर आता है. लेकिन अगर आपका कोई ट्रक है और आप किसी को सर्विस दे रहे हो, उसके में गुड्स भर के आप किधर लेके जा रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. Okay, services by way of transportation of goods by an aircraft from place outside India up to the custom station, so that is also not applicable for GST. So if any aircraft comes from outside of India till the custom station in India, so that is not applicable for GST. कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो बाय रेल और वेसल रिगार्डिंग रिलीफ मटेरियल और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर्स या रेलवे इक्विपमेंट्स रहेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरिज, जिसका पैसा जो है दैट इज नॉट exceeds the 1500 rupees, not more than 1500 rupees. In such case also, services provided by the transport agency for such goods are not subject to GST. मिल्क सॉल्ट अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिक मैन्यूअर है, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स है, तो रिलीफ मटेरियल है या डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वो अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय वे ऑफ रोड, then under way where the GST is not applicable. Services by way of giving on hire a state transport undertaking or motor vehicle
मेन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, जैसे कि एसटी वगैरह रहते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी, वो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं आता। टोल चार्जेस नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एज इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है कोई एजेंसी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय महावितरण, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस के सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल पेंशन सिस्टम नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो ये कुछ अहम ऐसे कुछ सर्विसेज है जो पर्टिकुलर स्कीम्स के अंडर प्रोवाइड किए जाते तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। Services by the Employee State Insurance Corporations to persons governed under the Employee State Insurance Act not subject to GST. Next is services provided by Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. Then services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to 2000 rupees in a single transaction not liable for GST. ये कुछ सर्विसेज है जो इंश्योरेंस सर्विसेज नॉर्मली कम्स अंडर द जीएसटी 18%, बट अगर हर्ट इंश्योरेंस स्कीम है, कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, स्कीम्स फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स है, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना है, हाँ, सुरक्षा बीमा योजना है, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये सब जन आरोग्य बीमा योजना, तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, तो ऐसे कुछ भारत सरकार के जो बड़े अलग अलग स्कीम्स है इंश्योरेंस स्कीम, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। सी सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस रिगार्डिंग जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, जहाँ कोई लोग 365 रुपीज भरते, 180 रुपीज भर के उनको 2 लाख का टर्म अमाउंट सिक्योर होता है। सो अंडर विच उस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। प्रधानमंत्री जन धन योजना है तो उसके ऊपर भी, या जीवन ज्योति बीमा योजना नॉट एप्लीकेबल फॉर जीएसटी। अटल पेंशन योजना के अंडर जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया जाता है उस सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। तो ये कुछ जो गवर्नमेंट के कुछ जो स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम्स अंडर विच आर स्पेशली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, they are not liable for GST. Services provided by central government, state government, or union territory or local authority by way of allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use uh, ratio frequency spectrum during the period of 1st April 2016 on payment of license fee or spectrum user charges as the case may be. So अलग अलग areas where the GST is not applicable. So in under this also GST is not applicable because they are exempt list, comes under the exempt list. Services provided by an incumbent up to a total turnover of 50 lakh rupees in a financial year. अभी एक इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको आप ज़्यादा डीप में मत लेके जाओ। जो गुड्स के बारे में मैंने बताया कुछ बेसिक सर्विसेज, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इवन सी सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट वगैरह रहते हैं तो उसके ऊपर भी जो अपने ये जो सर्विसेज है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट किसी एक प्रेस के साथ अटैच नहीं रहता, तो वो कुछ एरिया के या स्पेशलाइज्ड एरिया से स्पोर्ट्स रिलेटेड रहेंगे, फिर वो या स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करेंगे। सो वहाँ से न्यूज़ लेके वो अलग अलग न्यूज़ एजेंसी को बेचते हैं और उसके लिए उनको एक फीस मिलता है। सो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। सर्विसेज बाय पब्लिक लाइब्रेरी, सर्विसेज बाय स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ओके, that is also not liable for GST. Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals except the rearing of horse. Horse rearing छोड़ के बाकी अगर आप किसी एनिमल rearing स्कीम चलाते हो, मे बी कछुए के लिए कुछ ऐसे लुप्त
मछलियों के लिए या जीव जंतु के लिए। सो वहाँ अगर जो आप कुछ ऐसे लैबोरेटरी चला रहे हो या कुछ कल्टीवेशन सेंटर चला रहे हो, सो दैट रियरिंग सेंटर वगैरह, सो दैट इज रियरिंग मीन्स पैदास। जो एनिमल रियरिंग मीन्स जो भी प्राणी या कुछ ऐसे लुप्त प्रजाति है उनके पैदाश के लिए अगर आप कोई ऐसे सेंटर चलाते हो और उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इवन कल्टीवेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट्स और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, इवन रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ये जो भी कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है फॉर टू मेक द प्रोडक्ट सेलेबल, that is not liable for GST. Trimming, sun drying, okay, curing, sorting, grading, cooling, बहुत सारी एक्टिविटीज है जिससे आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेलेबल बनाते हो, सो दैट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। इवन लोडिंग एंड अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जैसे कि सीड टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। Services by way of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing of vegetables not liable for GST. See, services provided by National Center for Cold Chain Development, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो यूनाइटेड नेशंस या यूनिसेफ, वो सर्विसेज जो नाटो की वगैरह जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, वर्क बोर्ड है हमारे यहाँ, तो फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, से फॉर एग्जांपल इज़राइल या फिर मक्का मदीना के लिए वगैरह जो पिलग्रिमेज है आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके लिए जो भी कुछ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास से दी जाती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो अगर आपको सर्विसेज अवेल करने तो कुछ फीस भरनी पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। तो ये कुछ सर्विसेज आप पढ़ सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू इट्स स्टूडेंट्स, इवन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, तो स्कूल कॉलेजेस में जो आप एजुकेशंस लेते हो दैट डजंट कम अंडर द जीएसटी scope. But if you are joining the coaching class, then on which the GST is applicable. But अगर आपने CICA के लिए एडमिशन लिया ICAI में रजिस्टर करके, तो उसके ऊपर उस फीस के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट आपने किसी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन किया तो उसके ऊपर फिर जो फीस भरते हो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यह सब आप पढ़ सकते हो। Any services provided by National Skill Development Corporation, services of assessing bodies empaneled centrally by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development, services provided by training providers such as under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana. So under which if you are taking any services, development services, and for that if you are paying any fees, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। नॉर्मली सब सर्विसेज जो है टैक्सेबल है 18% जीएसटी के अंडर, बट ऐसे ये जो सर्विसेज है जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, एग्जेम्प्ट है वो सब। देन कम्स दी सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एजेंसी रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन वगैरह रहती है ना वर्कर्स की, तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, नॉट लायबल फॉर जीएसटी। इवन सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट, जैसे कि कुछ क्लासिकल म्यूजिक रहता है, डांस रहता है या ड्रामा थिएटर रहता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता। और सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशंस टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, अगर आप वहाँ जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, तो उसके ऊपर जो आपको जो पास चार्जेस रहते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। अगर आप किसी ट्रेनिंग या कोचिंग सेंटर चलाते हैं जहां अगर आप कुछ ऐसा क्लासिकल डांस पढ़ाते हैं या कुछ स्पोर्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी क्रिकेट एकेडमी है, उसके लिए आप हर स्टूडेंट के पास से पर मंथ 5,000 और 10,000 फीस ले रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता।
Services by way of right to admission to circus, dance, theatrical performance, award functions not liable for GST. So ये कुछ है जिसके अंडर these are the exempt list. बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, just go through it and in the next lecture we will solve practical questions based on it. So ऐसे questions आएंगे and on which we will solve the practical questions. So thank you very much.